Hello students, welcome back to a geography class for lesson number 3, physiography and drainage. As we have already started with the physiography of India and completed the two physiographic division, that is the Himalayas and second one the North Indian plains. Now today we are proceeding towards the third physiographic division of India, that is known as peninsula. What is peninsula, students? See here with the orange color, the triangular part, inverted triangular part is there at the central part or west or the southern part of India. सेंटर से लेकर साउदर्न पार्ट जो इंडिया का है उसके बीच का पूरा जितना आपको इन्वर्स ट्रायंगुलर पार्ट नज़र आ रहा है, that is what known as peninsula. Okay, so today students we are going to learn about this peninsular region of India. See students, the peninsular region is lying to the south of North Indian plain and tapering towards the Indian Ocean. साउथ इंडियन प्लेन जहाँ पर एंड होता है, जहाँ अभी बुंदेलखंड प्लेट्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होता है नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है एंड होता है. ठीक है, तो जहाँ पर वो एंड हुआ उसके बिल्कुल नीचे से कहाँ तक इंडियन ओशन, लास्ट में बिल्कुल नीचे इंडियन ओशन जहाँ पर है वहाँ तक का पूरा पार्ट, बट इट इज़ टेपरिंग मतलब क्या होना, नीचे की तरफ पतला होते जाना. आप देखेंगे तो ऊपर जो ये बहुत ब्रॉड है और नीचे जाते जाते क्या होते जा रहा है, ये बहुत पतला होते जा रहा है ना. ट्रायंगुलर शेप है, इन्वर्स ट्रायंगुलर शेप. सो दिस पोर्शन इज नोन एज peninsula, Indian peninsula. Mostly it consists of many plateaus and hill range. The Aravallis and the Bundelkhand plateau are the famous hill range and plateaus here. Aravalli range see towards the northwest, बुंदेलखंड आपको जो है वो नॉर्थ ईस्ट में नज़र आ रहा है. ठीक है, विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज आर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस पेनिनसुलर रीजन. पूरे पेनिनसुला के अगर हम सेंटर में देखेंगे, सो वी आर हैविंग टू माउंटेनियस रेंज, विंध्या एंड सतपुड़ा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट टू. देखिए ईस्ट में ईस्टर्न घाट का पूरा रेंज है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट का रेंज है. सो लाइकवाइज दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट इंडियन पेनिनसुला. ज़्यादा आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है. इंपॉर्टेंट माउंटेनियस रेंज इसकी क्या है, अरावलीज है. प्लेट्यू जो है वो प्लेट्यू इसमें जो इम्पॉर्टेंट है बुंदेलखंड प्लेट्यू. आफ्टर दैट विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज एंड वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस पेनिनसुलर रीजन. ओके स्टूडेंट्स, दिस पेनिनसुलर रीजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू. दो पार्ट में क्या कर दिया गया है, इसको डिवाइड कर दिया गया है. द सेंट्रल हाईलैंड्स इज इंक्लूडिंग द पार्ट्स ऑफ मारवाड़, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, भागेलखंड, छोटा नागपुर एट्सेट्रा. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू, सो इट कंसिस्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना प्लेट्यू एट्सेट्रा. ओके, हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स आर फ्लोइंग, दैट इज Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi. These are Narmada, Tapi. These are the most important rivers flowing in this Deccan Plateau. After this peninsula, the next topic we are having the coastal plains. As the word indicate, coastal that means के सी के साइड का एरिया जो रहता है, किनारा जो रहता है उसे कहते हैं कोस्ट. Plain that means it would not be a mountainous region, it will be a plain area. Okay, so where it is actually situated in India, coastal plain India में कहाँ है and उसकी क्या details है, we will see right now. See students, India is blessed with a long coastline extending for approximately 7,500 kilometers. इंडिया को बहुत बड़ा कोस्ट लाइन मिला है. आपको पता है कि इंडिया का साउदर्न पार्ट जो है पूरा, it is what surrounded by water bodies from all the three sides, right? Indian Ocean, Bay of Bengal and Arabian Sea. These are the
water bodies which surround the southern part of India. So we are having a very long coastline. It is approximately 7,500 kilometers long and it lies to the western and the eastern part. See, eastern part में जो उसे कहते हैं eastern coast of India, जो western part में उसे कहते हैं western coast of India. And if you will see, so there is a dissimilarity between this eastern and western coast. दोनों बहुत अलग है एक दूसरे से. ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंट है एंड वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट देखेंगे तो इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो देर इज़ अ रिमार्केबल डिसिमिलरिटी बिटवीन बोथ द कोस्ट. दोनों भी जो है वो एक जैसे नहीं हैं. द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी. वेस्टर्न कोस्ट जो है यहाँ पर क्या आता है, दिस इज़ व्हाट द पार्ट ऑफ अरेबियन सी. ओके, इसके साइड में जो लगता है ये पूरा क्या है, ब्लू में अरेबियन सी है. इट इज़ बाय एंड अ लार्ज रॉकी कोस्ट. और ये बहुत बड़ा जो है वो रॉकी कोस्ट है. इसकी विड्थ जो है, द विड्थ ऑफ दिस पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी लेस. अगर हम कंपेयर करेंगे ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट को, सो वेस्टर्न कोस्ट की विड्थ क्या है, इट इज़ वेरी लेस इन कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट. एंड रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट and hence they form estuaries and not deltas. जो रिवर्स यहाँ पर फ्लो होती है वो कैसी है, they are very short and very swift. तो इसीलिए क्या होता है, when they are just flowing they were not forming any delta. रिवर्स जो है जब क्या होती है सी से जाकर मिलती है, ऑल दिस रिवर्स देखिए ब्लू से लाइन्स जो आपको दिख रही है रिवर की, ये सब जाकर क्या होती है, ऑल दीज आर मीटिंग टू द अरेबियन सी, राइट. तो वो रिवर्स जब अरेबियन सी से जाकर मिलती है, सो दे वर फॉर्मिंग एस्ट्राइज. क्या फॉर्म होते हैं, एस्ट्राइज फॉर्म होते हैं. बिकॉज दे वर वेरी स्विफ्ट, बहुत स्लो और बहुत स्विफ्टली वो क्या कहती है, स्मूथली बहती है, इसलिए एस्ट्राइज फॉर्म होते हैं. और डेल्टाज फॉर्म नहीं होते. डेल्टा किस सिचुएशन में फॉर्म होते हैं, व्हेन वाटर इज फ्लोइंग वेरी फोर्सफुली. जब बहुत फोर्स से पानी बहकर आता है तो क्या होता है, अपने साथ बहुत सारा जो है वो मड और ये सब होते हैं ना, रॉक के पार्ट्स वगैरह होते हैं, मड होता है, कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं. तो ये सब क्या करता है, अपने साथ बहुत सारा लेकर आता है और कोस्ट में क्या होते हैं वो सब जमा हो जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो डेल्टाज आर फॉर्म. बट हियर वी कैन नॉट फाइंड एनी डेल्टा बिकॉज ऑफ दीज रिवर्स, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग एस्ट्राइज वाइल दे वर मीटिंग दी अरेबियन सी. ओके, if we are talking about the eastern coastal plains, so eastern coastal plains borders the Bay of Bengal and it has formed as a result of the depositional work of the rivers. Mostly rivers क्या होती है, आकर फोर्सफुली आती है और कहाँ आकर मिलती है, बे ऑफ बंगाल में. Because of the gentle slope of land, rivers flow at a very lower velocity and deposit the sediments brought with them at the coast. As a result, deltas are formed along with this coast. देखिए मैंने बताया था कि जब रिवर्स का फ्लो जो है वो कम और ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से क्या होते हैं, डेल्टाज और एस्ट्राइज फॉर्म होते हैं. व्हेन द फ्लो इज़ वेरी हाई, जब रिवर का फ्लो थोड़ा सा ज़ोरदार होता है, फास्ट फ्लोइंग होती है, तो उस टाइम पर एस्ट्राइज फॉर्म होती है, यानी कि कुछ भी मिट्टी वगैरह जो जमा नहीं हो पाती. व्हेन रिवर इज़ स्लो फ्लोइंग, उसका जब फ्लो होता है बहुत स्लो होता है, तो क्या होता है, जब अपने साथ बहकर आती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टियों सब लेकर आती है, जो क्या होता है एक जगह पर जमा होते हैं, सेडिमेंट्स जो होते हैं जमा होते जाते हैं. एंड व्हेन दीज सेडिमेंट्स वर accumulated at a place, so it results in the formation of the deltas. तो वेस्टर्न कोस्ट में हमने क्या देखा था, एस्ट्राइज फॉर्म होते हैं, डेल्टाज फॉर्म नहीं होते हैं. बट इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वी कैन फाइंड डेल्टाज एज रिवर्स आर वेरी स्लो इन देयर फ्लो. बहुत स्लोली फ्लो करते हैं तो अपने साथ बहुत सारा डेल्टा क्या करते हैं वो वहाँ पर जमा कर देते हैं. ओके, if you will see, so these are the different coastlines of India. Konkan coast, Malabar coast, Coromandel coast, Andhra coast, Utkal coast. ये क्या है, अलग अलग कोस्ट में जो डिवाइड किया गया है. ओवरऑल मिलाकर हम उसे क्या कहते हैं, ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, दैट इज द आइलैंड ग्रुप्स और द इंडियन आइलैंड्स. India has many small and large
island along with the coast of mainland. These are included in the coastal island groups. Beside India has 2 large groups of island. ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इंडिया के, बट ओवरऑल जो है वो क्या किया गया है, जितने भी आइलैंड्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है. द फर्स्ट वन आर नोन एज द लक्षद्वीप आइलैंड एंड द सेकेंड वंस आर नोन एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. सी टुवर्ड्स दी ईस्ट यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पास बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स है वो कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अरेबियन सी में जो आइलैंड्स है, दीज आइलैंड्स आर नोन एज लक्षद्वीप आइलैंड्स. ओके, व्हाट इज आइलैंड स्टूडेंट्स? In simple words, you can say that an island is a piece of land surrounded by water on all the sides. मिडल में पीस ऑफ लैंड रहेगा और उसके आसपास सारे साइड से क्या रहेगा, वाटर बॉडीज रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं, आइलैंड्स कहते हैं. ओके, दीज आइलैंड्स आर इंडिया में अगर हम देखेंगे तो कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस आइलैंड्स, so if you will see, so most of the islands in Lakshadweep are atoll islands. Atoll islands, that means an island formed by a ring shaped coral reefs encircling a lagoon. यानी कि कैसा रहता है, मिडल में भी वाटर बॉडी रहेगी, साइड में भी वाटर बॉडी रहेगी और बीच में बस एक बेल्ट जो है, सर्कल जैसा, रिंग जैसा जो एक बेल्ट रहता है लैंड पोर्शन का, उसे क्या कहते हैं, एटॉल. सो इफ़ यू विल सी लक्षद्वीप आइलैंड, सो देयर यू कैन फाइंड मैनी सच टाइप ऑफ आइलैंड. एटॉल जो है आपको ज़्यादातर वहाँ पर मिलेंगे कि उसके मिडल में भी क्या रहेगा, वाटर बॉडी होता है, एनसर्कलिंग ऑल्सो वाटर बॉडीज, सराउंडेड बाय ऑल्सो वाटर बॉडीज, बट बीच में जो है वो कुछ लैंड पोर्शन होता है जो एक रिंग जैसे नज़र आता है, उसे क्या कहते हैं, एटॉल. दिस इज़ व्हाट द फीचर ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड. Apart from that, if you are talking about this Andaman and Nicobar island, so these islands are mostly a volcanic islands. Volcanic eruptions जो है यहाँ पर जो island का formation है उसमें क्या है, volcanic eruption mostly होता रहता है, and because of that these islands were came into existence. See, this is the Lakshadweep island, and in this Andaman and Nicobar island you will mainly find the hills in the interior part of the island, and the best example of this Andaman and Nicobar island is Barren Island, and it is also an active volcanic island of India, जहाँ पर volcanic eruption जो है क्या होता रहता है, continuously होता रहता है. So even you can find these atolls in Nicobar islands too. जैसे हमने देखा था ना, ये atoll है ना, मिडल में भी क्या है, वाटर बॉडी होती है, साइड में भी वाटर बॉडीज होती है और फिर क्या होता है, लैंड पोर्शन. सो सच टाइप ऑफ एटॉल वी कैन फाइंड इन निकोबार आइलैंड ऑल्सो, बट देयर नंबर आर मोर इन लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स. ओके, सो हियर स्टूडेंट्स वी जस्ट कंप्लीटेड विद द फिजियोग्राफिकल फीचर ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हमने 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट कर लिया. इन द कमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ब्राज़ील. थैंक यू स्टूडेंट्स.